A very good morning, friends, and my dear students who have just cleared the 12th standard, and they've been confused regarding which courses they should be choosing up, and which courses would be giving in the future jobs to them. So we have came here to solve these problems. My name is Shaji Peter. I am been in the career counselor for last 15 years, associated with Ashra College of Education. And in my 15 years career of doing counseling part, I always came with the thing is that students are always been confused. वो हमेशा confused रहते हैं कि कौन सा कोर्स वो चूज करें और वो कोर्स चूज करने से उनका करियर कहाँ जाएगा, what the career planning is all about. So Ashwa College is giving a platform so that this information can be forwarded to all the 12th standard students, and we can able to give an insight of how the student should select their career in the coming times. And my dear friends, you know that it's been COVID time, and we are facing many problems in this epidemic. We have been coming to in the virtual education part, और वर्चुअल एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि आजकल जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या जितने भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, दैट इज एवरीथिंग ऑन द वर्चुअल. सो इन ऑर्डर टू कवर अप दिस पार्ट, हमें उस करियर ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए जो आगे जाके कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल रहेगा. तो बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स आते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस के लिए हमने ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया है, जिसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको एक इंसाइट दें कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द आईटी इंडस्ट्री. सो COVID-19 has been changed how the world has been looking up. हम लोग एक crowded area से एक isolation area में आ चुके हैं. हमने social distancing, washing our hands, immunity, this is the words we are learning up in this COVID-19 epidemic. तो इसके अंदर सबसे जो flourishing industry रहा है वो हमारा IT industry रहा है. So I will be just talking about how the IT industry is developing and how you can take your career in that IT industry. So many students have a confusion that which IT programs or which courses we should be choosing up. We have many programs with us. We have BSc in computer science, we have BTech in computer science, we have BCM, Bachelors of Computer Management, and we have BCA. तो इन सब कोर्सेज में से हम लोग कौन सा कोर्स चूज करें? So every courses has their importance, but if you talk about IT industry is concerned, तो purely जो आपको सिखाता है IT के बारे में, IT subjects के बारे में, that is BCA, that is Bachelors of Computer Application. For example, BSc Computer Science, उसके अंदर हमारे पास Physics, Maths के भी subjects होते हैं. Then you have a few subjects of Computer Science. तो उससे you cannot able to learn everything about the IT industries or everything about the IT subjects. Secondly, we have BTech in computer science. Again, you have to learn something about engineering. You have subjects of engineering also in this BTech. BCM includes only for the management, that is database उसमें सिर्फ include होता है. तो हमारे पास एक BCA ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप लोग सब कुछ पढ़ोगे. You will read everything. So BCA is then purely of IT sector. So I will just go further with this. What is all about BCA and how this क्या क्या subjects इसमें होते हैं. तो BCA's full form is Bachelors of Computer Application. तो BCA के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 मेन एरियाज हैं जब हम लोग BCA प्रोग्राम करते हैं. फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग, सेकेंड इज डेटाबेस, थर्ड इज नेटवर्किंग एंड फोर्थ इज वेब बेस्ड. BCA का फुल फॉर्म भी है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो बैचलर मीन्स इज अ डिग्री प्रोग्राम. सो कंप्यूटर्स मीन्स वी ऑल्सो लर्न सम सब्जेक्ट्स ऑफ हार्डवेयर ऑल्सो. तो हार्डवेयर के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिस्टम. सो वी विल लर्न समथिंग अबाउट हार्डवेयर. ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर्स. तो हम लोग जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो ऐप इज एन विच इज कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन. सो BCA वुड बी डीलिंग विद मेजरली 4 एरियाज, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस सब्जेक्ट्स, नेटवर्किंग एंड वेब बेस्ड. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप जो BCA कोर्सेज के अंदर पढ़ोगे, मेनली यू विल बी लर्निंग C++, विजुअल, जावा, .NET. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीखोगे. डेटाबेस सब्जेक्ट्स के अंदर वी हैव DBMS, RDBMS, MySQL, Oracle. नेटवर्किंग सब्जेक्ट्स के लिए यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग टाइप्स आर देयर. स्टैंडर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग इज देयर, वायरलेस टेक्नोलॉजी इज देयर, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम्स इज देयर. एंड वेब बेस्ड के लिए हम लोग पढ़ेंगे HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, ASP एंड PHP. So in BCA you will be dealing with every department of IT industry, because जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ आता है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना होता है. वी स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद उस सॉफ्टवेयर में डेटा डलता है, तो दैट इज थ्रू डेटाबेस सब्जेक्ट्स.
तो उसके लिए हम डीबीएमएस पढ़ते हैं, बिना डेटाबेस का सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। थर्डली, उस डेटाबेस को हम लोग को हर नेटवर्क पे दिखाना ज़रूरी है। आजकल वी आर ऑन द क्लाउड, वी आर ऑन द मोबाइल, सो वहाँ सब जगह दिखाना जरूरी है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और उसका प्लेटफॉर्म जो हम लोग तैयार करते हैं दैट इज़ वेब बेस्ड और मोबाइल बेस्ड। तो इसलिए BCA ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग चारों सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इफेक्टिव हैं तो आगे जाके जो आपको जॉब प्रोफाइल बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या कोडर्स। दिस इज व्हाट यू विल बी गेनिंग आफ्टर डूइंग द, इफ यू आर गुड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको अपने आप को इफेक्टिव बनाना है तो आपको दो चीज़ें आपको इनबिल्ड करनी है। वन इज बेसिकली योर मैथमेटिकल पार्ट, लॉजिकल जिसको हम लोग कहते हैं, लॉजिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो मैथ्स शुड बी गुड। एंड सेकेंडली द इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश में ही हैं। तो टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू गोइंग फॉर द प्रोग्रामिंग एरिया। यू शुड बी हैविंग अ लॉजिक। लॉजिक मीन्स दैट देर आर मेनी वेज ऑफ गेटिंग एन आंसर, यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 is 4, 3 + 1 is again a 4, and 8 - 4 is again a 4. तो योर आंसर्स आर कॉमन, 4 4 4 सब में आंसर्स कॉमन है, लेकिन सबका तरीका अलग है। तो प्रोग्रामिंग पर्सन शुड बी हैव ए गुड लॉजिक ऑफ डूइंग द थिंग्स, लाइक उसको शॉर्टेस्ट वे में करने के लिए उनके पास लॉजिक होना चाहिए। सेकंड, हम डेटाबेस की बात करेंगे। अगर आप DBM, यू गुड इन द DBMS, देन यू गेट अ DB मैनेजर्स जॉब, DB एग्जीक्यूटिव जॉब और DB एडमिनिस्ट्रेटर्स जॉब्स। So if you're good in that subjects, you will be dealing with getting the jobs in these areas. अगर आपका नेटवर्किंग सब्जेक्ट स्ट्रांग है या हार्डवेयर आपका इफेक्टिव है तो यू विल बी गोइंग एज अ जॉब एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क प्रोफेशनल्स, टेक्निकल प्रोफेशनल्स और हार्डवेयर इंजीनियर्स। दिस इज द एरिया वे यू गेट द जॉब इफ यू आर गुड इन द नेटवर्किंग एरिया। और हमारा जो सबसे हाईएस्ट जॉब सीकर्स है, जॉब प्रोवाइडर्स हैं, दैट इज बेसिकली वेब बेस्ड। तो वेब बेस्ड के अंदर वेब डिज़ाइनर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं एंड वेब मास्टर्स हैं। सो दिस इज व्हाट यू लर्न इन द BCA। आपको कौन सा जॉब मिलता है आफ्टर डूइंग द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो हमें ये दिस थिंग शुड बी नॉन टू द स्टूडेंट्स इज दैट कि जो चीज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें कहाँ पर ले जाता है। ऑलवेज स्टूडेंट एज एन कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि BCA कौन कर सकता है, कौन से स्टूडेंट्स करने चाहिए। तो BCA जो है इट्स कैन बी डन बाय एवरी स्ट्रीम स्टूडेंट्स, दैट इज 10+2 कोई भी स्ट्रीम का है, साइंस का हो, साइंस बायो का हो, साइंस मैथ्स का हो या कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, एनी स्टूडेंट्स कैन गेट एडमिटेड इन BCA प्रोग्राम। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 48%। तो बिकॉज BCA सिलेबस जो होता है वो आपको बेसिक से ही शुरू किया जाता है। सो एवरी स्टूडेंट्स एनी स्ट्रीम्स कैन जॉइन दिस प्रोग्राम। एंड जब हम BCA की बात करते हैं तो वी शुड ऑलवेज बीन अवेयर अबाउट हाउ आवर IT इंडस्ट्री इज ग्रोइंग अप, बिकॉज BCA करने के बाद आपको जो जॉब मिलता है दैट इज ऑन योर IT सेक्टर्स। तो IT सेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि आप जहाँ जॉब करोगे उसका सेक्टर्स का भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सिर्फ हमें कोर्सेज नहीं करना है कि उस कोर्सेज को कहाँ ले जाया जाता है, किस इंडस्ट्री में आपको ले जाया जाता है। तो आई एम जस्ट गिविंग इनसाइट ऑफ दैट एरिया। हमारे पास IT एंड ITES सेक्टर्स हैं। ITES सेक्टर्स का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 4 एरियाज हैं। फर्स्ट इज योर IT सर्विसेज, सेकेंड इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड फोर्थ इज हार्डवेयर। तो ये 4 मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं IT और ITES सेक्टर्स के अंदर। तो हाईएस्ट ग्रोइंग जो इंडस्ट्री है दैट इज़ ऑफ IT, मतलब इन चारों सेक्टर्स के अंदर से में सबसे ज़्यादा IT सर्विसेज के अंदर भी BFSI दैट इज़ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, तो मैक्सिमम IT को ही यूज़ करते हैं। तो ये जो सेक्टर है दे ऑलवेज यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, उस पर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो IT सर्विसेज के अंदर जो हम लोग कहते हैं मैक्सिमम जॉब्स भी जो मिलता है वो BFSI के अंदर ही मिलता है। वी हैव अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन 51%। और अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 81% शेयर है IT सर्विसेज का ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। एंड सेकेंड इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर earlier it was call center, then we came up with KPO, now it is called as a business process management। जो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कि कोई इन्फोसिस है, इन्फोसिस अपना सॉफ्टवेयर बनाती है, तो सॉफ्टवेयर के बैकएंड ऑपरेशंस के लिए उन लोग BPM पे दे कैरी आउट बाय द BPM। फॉर एग्जांपल दे हैव मेड सम सॉफ्टवेयर फॉर ऑस्ट्रेलियन बैंक, तो उनका जो बैकएंड का प्रोसेस है वो भी हम BPM के थ्रू करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जाता है बैंक्स में अपना ओपन करने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए, दैट कैन बी डन ऑनलाइन ओनली।
तो उसका ऑपरेशंस बैंक के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एवरीथिंग इज डन बाय द बीपीएम कंपनीज. यू हैव एन एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, बीपीएम, जेनपैक्ट, ये कुछ कंपनीज हैं जो इस पे करते हैं. तो वी गेट ए प्रोजेक्ट्स ऑन दिस पार्ट. थर्ड इज योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो इट्स अगेन ए ग्रोइंग कंपनी जहाँ पर हम लोग मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं एंड वी हैव ए 19% रेवेन्यू शेयर. तो इट्स एंड लास्ट इज हार्डवेयर. हार्डवेयर इंडस्ट्री इज ए ग्रोइंग इंडस्ट्री नाउ, क्योंकि हार्डवेयर इंडस्ट्री में अब तक का ग्रोथ रेट जो 7 to 8% है, बट बिकॉज ऑफ चाइना इज बीन नेग्लेक्टेड बाय मेनी कंट्रीज, तो कुछ हार्डवेयर इंडस्ट्रीज इज बीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया. तो आने वाले टाइम के अंदर वी विल बी हैविंग ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 17 to 18% इन हार्डवेयर. तो हार्डवेयर इंडस्ट्रीज भी हमारा, वी हैव एन गुड ग्रोथ रेट नाउ. तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स लाइक आपके सामने है IT सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. एंड वी आर ऑल्सो मूविंग टू ऑटोमेशन पार्ट. और ऑटोमेशन के अंदर भी ये कहा गया है कि बाई 2028 we will be having 18% growth in automation industry, और we can say AI industries, artificial intelligence. हमारे इंडिया के अंदर भी अभी वी हैव गॉट 24 to 25 AI इंडस्ट्रीज वर्किंग इन इंडिया एंड दे प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन मेनी फॉर मेनी कंपनीज. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कंपनी दैट इज प्रोवाइड iDriver सॉफ्टवेयर विच इज़ एन AI बेस्ड सॉफ्टवेयर. तो उसके अंदर इट्स एन ऑटोमेटेड ड्राइविंग सॉफ्टवेयर. तो बहुत सारे बड़े कंपनीज भी हैं जो अपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए उन लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पर वी हैव एन ट्रक्स विथ हैविंग 20-25 or 35 टायर्स विच आर बिग logistic companies. They're using this iDriver softwares also. So the coming era is all about IT. So I will also show about that कि आने वाले टाइम के अंदर by 2022 के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो IT का प्रोपोर्शन है, how the IT companies would be, all the companies would be using information technology or IT techniques would be used in the company. So you can see in that chart also कि somewhere about 85% is been the companies are using big data analyst. उनको यूज़ कर रहे हैं. 75% उन लोग अभी भी ऐप और वेब एनेबल मार्केट्स उन लोग यूज़ कर रहे हैं. मतलब देयर कंपनीज आर कमिंग अप विद देयर ऐप्स, दे आर कमिंग अप विद देयर वेबसाइट्स. So same thing, IoT is there. 75% companies are using IoT, Internet of Things is there. So IoT is the things is that कि हम लोग अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग इंटरनेट पे डाल देते हैं और वी कैन यूज इट दैट ऑन अवर मोबाइल फोन और एंड्रॉयड फोन और iOS phones also. Then machine learning, cloud computing, digital training. You can see in that in our slide that कि maximum companies are using IT services. तो जितना ज़्यादा ये सर्विसेज यूज़ करेंगे तो IT बेस्ड के जो बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं, द चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब्स आर हाई. और जिस तरह से IT यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे तो उस तरह से ह्यूमन रिक्वायरमेंट या ह्यूमन की वर्किंग आवर्स या हम कह सकते हैं इंसानों की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी इंडस्ट्री के अंदर. यू आर सीइंग एन दिस चार्ट विच इज़ बीन गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके अंदर आप देख सकते हो 2018 के अंदर सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेसिंग के अंदर 47% मशीन वाज यूज्ड एंड 53% ह्यूमन वेर यूज फॉर इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेसिंग. और लेकिन 2022 के अंदर मशीन्स इज बीन यूज फॉर 62% एंड 38 इट इज बीन ह्यूमन्स आर रिड्यूस टू 38%. तो इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम वी आर कमिंग विद टेक्नोलॉजीज, मशीन्स आर टेकिंग ओवर द ह्यूमन्स. तो अगर हम लोग वो कोर्सेज करें जहाँ हम लोग मशीन लर्निंग पे हम लोग जाएं या मशीन टेक्निक्स पे हम लोग जाएं या IT एरियाज में जाएंगे तो हमारे लिए जॉब्स के मिलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं. वी आर नाउ इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. फर्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ पर हमने मास प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग पे हमने काम किया था. सेकंड हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो तो इलेक्ट्रिकल मास प्रोडक्शन पे हमने काम किया था. थर्ड वाज अबाउट योर इंटरनेट एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी. और फोर्थ रेवोल्यूशन उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसको हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी पे हम लोग जा रहे हैं. तो अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर 4 बेसिक चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ योर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. उसको हम लोग AI कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं, ऑगमेंटेशन कहते हैं, वर्चुअल लर्निंग कहते हैं या वर्चुअलिटी कहते हैं. तो ये आपका सबसे पहला दैट इज वुड बी यूज्ड, AI वुड बी यूज्ड. सेकंड इज डेटा साइंस वुड बी यूजिंग अप. Third is your IoT, Internet of Things would be using, and third and fourth is robots. So this is the 4 main major areas. और जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे चेंजेस आएगा और चारों चीज़ IT रिलेटेड ही हैं.
So, my friends, you can assume that in the coming time, the IT would be changing the scenarios of the programs. And same thing you can find in the अगर आप अभी web search करोगे, Facebook में देखोगे, आप देखोगे, you're seeing the ads of IIT Mumbai, IIT Madras. They are coming up with a program in courses in programming and machine learning. जिसके अंदर कोई एज गैप नहीं है. एंड इवन लाइक IIT बैंगलोर, दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद PG डिप्लोमाज इन मशीन लर्निंग एंड AI पार्ट. वाई दे आर कमिंग अप विद दिस प्रोग्राम इज दैट कि बिकॉज उनको पता है आने वाला टाइम जो है इसी चीज़ का है. तो इफ़ यू आर गोइंग इन IT एरियाज, यू आर गेटिंग जॉब्स एंड गेटिंग मोर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब्स वुड बी इंक्रीज्ड मोर. एंड ऑलवेज देर इज एन क्वेश्चन फ्रॉम, बिकॉज हम लोग राजस्थान बेल्ट से हैं, तो हमेशा हमारा पहला प्रेफरेंस रहता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स पे हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें या गवर्नमेंट जॉब्स पे हम लोग जाएं. तो BCA करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्राइवेट एरिया में ही हमें जॉब मिलता है. तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करेंगे, यू हैव NIC इंफॉर्मेशन, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, उसके अंदर टेक्नीशियन से लेके प्रोग्रामर तक की जॉब्स अवेलेबल हैं जो हु पास आउट फ्रॉम BCA. वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन, DOIT, जो राजस्थान के अंदर हम लोग इज इन प्रोवाइडेड. तो उसके अंदर भी हमारे पास AI से लेके प्रोग्रामर तक की जॉब्स अवेलेबल हैं. देन वी हैव राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वेयर द BCA स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इवन इस साल से हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. पहले बच्चों को B.Ed करने की जरूरत होती, BCA वाले बच्चे नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए अलग से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जॉब निकाला है जिसमें BCA इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. So we have many government jobs. You can find in Indian Air Force, we can find in ONGC, we can find banking. Banking के अंदर IT officers के लिए jobs के लिए भी they require BCA students. And FCI is Sales Tax Department is the Food Corporation of India. तो सारे डिपार्टमेंट के अंदर IT की रिक्वायरमेंट रहती है. तो गवर्नमेंट जॉब्स भी एम्पल है. और इसका बेसिक जो आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है वो भी आपका प्रोग्रामिंग है, C++ है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग है. यही बेसिक जो आप BCA में पढ़ोगे यही सारे क्वेश्चंस उसमें पूछते हैं. तो इफ़ यू लर्न दैट इन दैट मैनर, यू कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स एंड गेट डाउन टू द गवर्नमेंट जॉब्स. द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द स्टूडेंट इज दैट कि क्या हमें जोधपुर के अंदर भी कोई जॉब्स मिल सकते हैं. And you will be a little bit surprised that कि जोधपुर is an upcoming IT hub जिसमें हमारे बहुत सारे कंपनीज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर IT पार्क, दैट इज रिको ने डेवलप किया है. और भारत का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है, STPI सेंटर है, वो भी हमारे जोधपुर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर किया जाता है. STPI हमारे पूरा राजस्थान के अंदर 3 ही है. वन इज इन जयपुर, सेकंड इज इन जोधपुर एंड थर्ड दैट इज बीन कंस्ट्रक्टेड इन भिवाड़ी. तो यू कैन नो दैट कि हाँ IT सेक्टर्स बढ़ रहा है. राजस्थान के अंदर मेनली जो हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ मिनरल्स था. फर्स्ट वी गिव मोर अमाउंट्स टू मिनरल्स बिकॉज वी हैव मोर मिनरल ऑल्स थिंग इज देन. सेकंड वाज टूरिज्म. थर्ड इज नाउ वी आर ट्राइंग टू कम अप विद दिस IT एरियाज. तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग देयर एफर्ट्स. तो जोधपुर के अंदर हमारे पास IT पार्क्स भी हैं, STP सेंटर्स हैं. तो स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि जॉब्स ढूंढने के लिए. आप जोधपुर में भी ये सेम जॉब्स मिल सकता है बिकॉज वी हैव मेनी कंपनीज दैट वर्किंग इन. और हमारे BCA स्टूडेंट हैं जो इस तरह से कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं, चाहे वो लूसिड हो, ड्रीम टीम हो, आंध्राटी हो, CG टेक्नोसॉफ्ट हो, माइक्रोलैंड हो. तो वी हैव मेनी सच कंपनीज वेयर आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग. तो अब हमेशा सेकेंडरी ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आफ्टर BCA. सर BCA करने के बाद हम लोग क्या करें, क्या MCA ही करना कंपलसरी होता है? तो मेरे अनुसार ऐसा नहीं है. BCA के बाद अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन चूज योर कोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मेरा यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग, यू आर गुड इन द कोडिंग पार्ट, तो आप MS करें, मास्टर्स ऑफ सॉफ्टवेयर करें. then you don't have to go with any other programs because उस मास्टर्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोडिंग, कंप्यूटेशन इसके बारे में ही सिखाया जाता है. अगर आपको लगता है कि मेरा डेटाबेस बहुत अच्छा है, डेटाबेस में आई एम गुड इन डेटाबेस मैनेजमेंट एरिया, देन यू कैन डू फिर MCM, दैट इज मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट. एंड अगर आपको लगता है मेरा नेटवर्किंग हार्डवेयर एरिया, आई एम गुड इन दैट वन, आई डोंट वांट टू गो इन दैट सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट एरियाज, देन यू कैन गो विद दिस नेटवर्किंग. उसके लिए आप MSc इन IT, मास्टर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जितना सिलेबस या सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है वो डील करता है नेटवर्किंग के ऊपर, वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर और आपके हार्डवेयर के ऊपर.
एंड स्टूडेंट्स हु आर MCA, उन बच्चों को करना चाहिए जिनको लगता है कि आई एम गुड इन ऑल द एरियाज एंड आई वांट टू लर्न समथिंग मल्टीपर्पसली, मुझे सारा चीज़ सीखना है, तो दे कैन गो विद MCA, दैट इज मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर आप सारी चीज़ सीखेंगे, आप प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, आप डेटाबेस भी सीखेंगे, आप नेटवर्किंग भी सीखेंगे, या वेब बेस्ड भी आप सीखेंगे। ज़्यादातर वेब बेस्ड कवरअप होता है आपके MCA के अंदर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस साल से एक और अच्छा AICTE ने अच्छा अनाउंसमेंट दिया है कि जो बच्चे BA हैं, BCom हैं या BSc हैं, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं MCA के लिए। एंड अर्लियर इट वाज ऑफ 3 years, MCA वाज ऑफ 3 years, इस साल से उसको 2 years में कर दिया गया है, 2 साल का ही है MCA, जिसके अंदर BA और BCom और BSc वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं विद अ कंडीशन दैट कि उनके या तो 10+2 में मैथमेटिक्स होनी चाहिए एंड आइदर और ग्रेजुएशन के अंदर उन्होंने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए 1 साल के लिए। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन क्लियर होता है तो दे कैन टेक एडमिशंस इन MCA प्रोग्राम। तो यू कैन सी व्हाई दिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजंस 3 साल से 2 साल में लाने का रीज़न ही यही है कि उनको पता है कि दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, और उसमें हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसका एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हैं कि जैसे गूगल है, दे आर कमिंग अप विद कोडिंग क्लासेस फॉर स्टूडेंट फ्रॉम 6 years, 6 साल के बच्चों के लिए वो कोडिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अभी से इन बच्चों के अंदर IT सेक्टर्स में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ताकि आगे जाके उनको पता है 10 साल के बाद बच्चा सिर्फ क्या सोचेगा, IT के बारे में ही सोचेगा, IT बेस्ड चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो गूगल, बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, सिस्को हो या विप्रो हो, तो इन लोग यही चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा स्किल्ड पर्सन तैयार होकर मिल जाए। तो 6 साल के बच्चों को उन लोग कोडिंग सिखा रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि दे कैन हैव ए गुड स्किल पावर इन द कमिंग टाइम। तो दिस आर द फ्यू प्रोग्राम्स वी कैन डू आफ्टर दिस BCA, आई थिंक सो। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को कि IT सेक्टर्स के बारे में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें इस वीडियो के थ्रू। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको पूछना है या कुछ आपकी क्यूरीज रह गई है, या मैं यहाँ इफेक्टिवली पूरा पॉइंट्स में डील नहीं कर पाया, तो यू कैन कॉल मी अप, माई नंबर्स इज 8302006002 एंड यू कैन इनबॉक्स मी ऑल्सो। हमारा मेल ID भी info@ashwacollege.edu.in है। और अगर आपको लगता है कि यू कैन क्यूरी और व्हाट्सएप, आप अपने क्यूरी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर इज 8696945519 विच इज इन द स्क्रीन ऑल्सो, कमिंग द स्क्रीन ऑल्सो। So thank you friends, thank you very much for listening to me and having patiently listening all these things. One last note I will be giving up is that कि all have to work for getting jobs. तो हम अपनी स्टडीज़ को इतना इफेक्टिव करें, बिकॉज आज आपको जॉब नहीं करना है, आपको 3 साल के बाद या 5 साल के बाद कहीं जॉब करना है। तो हमें ये देखना है कि 2025 के अंदर भारत के अंदर कौन सी इंडस्ट्री होगी जो ज़्यादा डेवलप होगी। तो 2025 के अंदर अगर आप जितने भी सर्वे निकालोगे, यू विल फाइंड IT industry is been flourishing like anything, and you will be getting jobs, maximum jobs in IT industry. So I would be suggesting students you should be move with the programs like BCA for getting jobs in the future. Thank you very much again. Thank you students.